Yeah. Good morning, one and all. Am I audible properly? Yeah, ma'am. Yes. Myself is Dr. Rupa Aratya. I'm the moderator for today's speaker meet. It's a privilege to be here amongst all. And I would request our President, Rotarian Pritesh Chandagji, for his opening remarks. Good morning, everybody. With everyday changing business environment, the only way one can be in a forefront is to keep innovating. With innovation, there are other challenges of ensuring that our innovation is not copied nor hijacked by others. To protect ourselves, our businesses, and our product, one has to take copyright, trademark, and IP very seriously. Though protection is important, but such trademark strategies also help us to build our strong brand. Such idea communicate to our partners and customers that we are passionate about our business and so loyal to our customers too. Business are no more done through capital investment, but more through intellectual property. Best examples to quote here would be Infosys, Flipkart, Ola, etc. Without protecting their out-of-box ideas, they won't have survived to this level of success. It's a great subject for today's time when the world is challenging and every one of us are looking for avenues to get success. One avenue would be protecting first and creating a brand name of for ourselves. Let me welcome Advocate Harish Sumyani to take us through this very important subject. Sir, back to MOC. Thank you. Yeah, welcome each and every member of Ishanya. Very true. Just a moment to intervene. I would like to introduce you, sir, before you start your talk. Let our audience know exactly about you. Today's speaker is Mr. Harish Tulsidas Sumyani. He is the director of the prestigious KK and Company. He completed law graduation in the year 2001. Thereafter did internship under senior counsel advocate Sri Hari Ane, who has a pan-India presence. In 2004, he started his own practice in intellectual property law and established his own firm by the name of KK and Company. He specializes in trademark, copyright design, geographical indignation, patents, and international brand. He is married to Ms. Nandini, and presently he handles matters of reputed clients of Nagpur like Das Jewelers, Confidence Group, etc. His clientele are spread pan India. We have his gracious presence to enlighten the Ishanians to make a mark our brand and prosper both personally as well as financially. Over to you, Mr. Sumyani. और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका टॉक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो ताकि it would benefit maximum of our audience. And please, for any questions, you can raise your hand or you can type in the chat box. We'll take a question answer session after the talk of the speaker is over. Over to you, Mr. Sumyani. I want to share the presentation also. So, can you make me the host? Yes, sir. I have already made you co-host. Okay. You can share. You can share your screen. So you can share your screen. Yeah, just. Harish sir, any difficulties? Yes, I'm playing. It is in Mac, so it will take some time.
Should I start? Your screen is not visible. It's clear. Screen is clear. Screen is not visible. Not visible. Actually, it is on MacBook. I'll try it one more time. So once you click on the share screen button at the bottom, it's going to give you a couple of screens. So select the desktop screen and you should be on it. This is for MacBook actually. Share screen. I have clicked. Desktop. Yeah. Yeah, go to desktop. Yeah. And then open your file. Yeah, now you can do that. Yeah, it's visible, so. Yeah, now it is. So your desktop is visible. Now you can open your presentation, please. हाँ सर नमस्कार। गौतम बोला था कि आपकी Harish sir, है your presentation then starts screen पे दिख रहा होगा, then you can take it from there. ठीक है, आप भेजो, फोन कर दें, जब निकलेगा तो फोन करना मुझे। Yeah. तो एक लड़का आपके लिए जाएगा, तो लड़का It's visible now. Is it visible? Screen? It's perfectly visible, sir. आपका क्या क्या आइटम है? Gautam bhai, is it possible you can mute yourself, please? हाँ। Yeah. So I'll start it. In next few minutes, we will discuss who we are, what we do, our clientele, and who we wish to connect with. Screen hang over. So use your mouse pad, the tracker. Just click on that. I think it works there. So who we are? We are a practicing law firm, intellectual property rights. We expertise in handling IPR and litigation matters. We have associates in Delhi, Kolkata, Mumbai, and Ahmedabad. What we do? We provide services in IPR relating to trademarks, copyrights, design, patent, geographical indication, and drafting related to various IPR matters, ISO certification, and barcode. I'll share a short video.
So why trademark? Brand identity is crucial to the success of business today. With a trademark, you retain exclusive rights to mark your products with no one else being allowed to use the name, symbol, name, slogan in that particular region. इसमें मुझे just इतना एक छोटी सी बात समझानी कि भाई we can take registration for particular region also or throughout particular state or throughout India. It's up to us. जहाँ जहाँ हमारा बिजनेस है वहाँ उस एरिया में हम लोग लिमिट कर सकते हैं उस मार्क को यूज करने के लिए. After that, trademark provides protection for both business and consumers, making them an important part of running a successful company. Brand identity is important for success of business today because brand is a promise for quality of services or goods provided by a company. What to trademark? You can trademark your brand name. For example, your company name. फार्मा कंपनीज जो है वो ज्यादातर अपने प्रोडक्ट नेम्स करवाती हैं और बहुत सी कंपनी सिर्फ अपने जो लोगोज हैं उन्हीं को ज्यादा फोकस करती हैं. सो यू कैन ट्रेडमार्क योर स्लोगन. भाई आपको कंपनी का ब्रांड टैगलाइन है, दैट आल्सो यू कैन ट्रेडमार्क सो दैट नो अदर कैन इन्फ्रिंज दैट राइट्स. एंड यू कैन आल्सो ट्रेडमार्क लोगो यूनिट एज अ होल. मींस फॉर एग्जांपल आप जैसे एक फुल जैसे हल्दीराम लोगो है तो वो लोगो यूनिट उसमें पूरा आपका नेम, डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग विल गेट प्रोटेक्शन if you get a registration for logo. After that, who can apply? Any person claiming to be the proprietor of the trademark used or proposed to be used by him can apply. Means अगर आपने just अभी शुरुआत की है बिजनेस की तो we will apply as proposed to use. That हम आज से भी यूज कर सकते हैं और इन फ्यूचर 4 to 6 months में भी वो प्रोडक्ट क्या ब्रांड नेम यूज कर सकते हैं. और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो काफी सालों से यूज करते हैं पर उन्होंने अभी तक ट्रेडमार्क नहीं करवाया होता है तो हम उसमें प्रायर यूजर करके अप्लाई करते हैं सो दैट डिपार्टमेंट ऑल्सो नोस कि भाई ये इतने साल पहले से नाम या डिजाइन यूज कर रहे हैं बट इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अभी अप्लाई किया है. तो इट गिव्स अ प्रोटेक्शन टू द कंपनी और ओनर कि भाई अगर कोई सेकंड पर्सन अप्लाई करता है क्लेमिंग टू बी द प्रोप्राइटर फ्रॉम डेट 1, मतलब आज की डेट से अप्लाई कर रहा है तो जो प्रायर यूजर रहेगा ही गेट्स द सिक्योरिटी और वो मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल रहता है. द एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय इन अ कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल. अ पार्टनर्स कैन आल्सो अप्लाई. अ कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ट्रस्ट, joint applicants means association of persons or company can also apply for trademark. But the criteria is that कि भाई अगर individual और sole proprietorship अंडर में apply करते हैं तो गवर्नमेंट उसमें कंसेशन प्रोवाइड करती है. MSME में भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 50% कंसेशन मिलता है. बट अगर विदाउट आप MSME या मतलब उद्यम आधार के बिना आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंसेशन अवेल नहीं कर सकते आप. And once it is registered, it is valid for a span of 10 years. Now, copyright. Copyright means all rights covered by the act upon its owner in respect of his literary, drama, music, artistic work, in respect of cinematographic film or record. It does not essentially mean a right to do something, but only the right to exclude others from doing of those acts and things. Copyright is generally granted for artistic work, device, logo, books, music, songs, films, and once it is registered, it is valid for a span of 60 years, 60. As India is a signatory of Berne Treaty, which state that if copyright exists in one of these countries who are a member of Berne Treaty, then it will be valid to all the signatory countries. At present, there are 177 signatory countries in the world. And if we take copyright in India, then it will be valid in all the signatory countries, means 177 countries, it will be valid. Now, design. Design basically includes shape of goods. Under design, we can take registration of shape, configuration, pattern,
ornamentation applied to any article. For example, shape of water bottle, shape of chair table, कोई ज्वेलरी की डिजाइन होती है exclusive, and it gives the owner to right to stop anyone copying the external design of the product with their geographical jurisdiction. Sorry. Now, patent. A patent is the intellectual property right relating to inventions, and it is a grant of exclusive right for a limited period. The government it provides a registration for only 20 years, provided by the government to the patentee in exchange of full disclosure of his invention or excluding others from making, using, selling, importing patented products or process producing that product for purpose who can apply for patents, an individual or a company. Right granted for a new invention, any individual or company can apply. And as earlier I told, it is valid for 20 years. And after 20 years, it becomes a public domain. Means anyone can use that patent. Now, geographical indication. Geographical indication to goods means any indication which identifies such goods as agricultural goods, natural goods, manufactured goods as originating or manufactured in the territory of the country. Means geographical indication is granted for natural goods for that particular region. मतलब वो associate कर देते हैं, जैसे for example वायगांव हल्दी and पैठनी साड़ी, तो वो पर्टिकुलर एरिया में जो है वो उस एरिया के लिए वो ग्रांट हो जाता है. Now, we provide services for IPR drafting, which includes memorandum of understanding, जो 2 या 3 कंपनीज के बीच में MOU साइन होते हैं. And now assignment deed, जिस तरह से एक immovable property में sale deed होती है for sale of that particular plot or agricultural land. Similarly, trademark में assignment deed sign होती है. First of all, हम उसकी brand value निकालते हैं कि भाई इसका क्या brand value निकलता है. Accordingly, गवर्नमेंट फीस चार्ज करके हम लोग फिर उसके हिसाब से असाइनमेंट डीड ड्राफ्ट करके उसको प्रोसेस करते हैं. एंड ऑल्सो प्रोवाइड फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट्स. वंस वी टेक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर brand name or design, we can give it on franchisee to any other company or individual to use our mark in that particular area or region against the licensee fees which we decide. तो वो agreement, franchisee agreement भी हम लोग draft करवा के देते हैं. And last is merger and amalgamation agreement. अगर कोई कंपनी हमारा प्रोडक्ट या हमारी ब्रांड जो है वो टेक ओवर कर रहा है या 2 कंपनीज आपस में अमेलगमेशन हो रही है, तो दैट आल्सो वी ड्राफ्ट merger and amalgamation agreements. ISO certification. It is a certificate for any company for quality of goods or services rendered by them, and it is valid for 3 years of time. Generally ISO 9001 2015 जो quality certification है वो companies को required रहता है. Now, barcode. A barcode is a method of representing data in a visual, machine readable form. Across many industries, barcode offer automatic production identification, extremely fast recognition, and implementation of data. Barcode provides asset and security tracking, theft deterrence, peace of mind, and a demonstrable reduction in loss and liability. Barcode generally billing purpose के लिए use होता है, जो malls हैं. अब मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को कम से कम 4 करोड़ रुपया इनकी पढ़ाई के लिए. Once the 13-digit code appears on the product, is scanned, the details of product related to MRP, net weight, product classification get displayed on the computer screen. And once we take a barcode registration, it is valid for a span of 1 year, and thereafter it has to be renewed. And these are the logos which we have registered for some of our clients for trademark and copyright both. Now, whom we wish to connect with. You can connect us with pharma industries, food industries,
cosmetic industries, retail chain stores, authors and book publishers, music composers, electronic and electrical goods manufacturers and traders, hospitals, जो branches रहती हैं काफी hospitals की, and IT industries. And these are our contact details. So please feel free to contact if any such services are required for your company. Thank you. Harish Bhaiya, if you can actually explain how the trademarking process and all that works, so that gives us a better insight and an idea about how these things work, why we need to protect ourselves. So a little bit more in depth about trademark and patenting, and how it will help us in this new, in the modern era. Yes, sir. So first of all, जैसे कोई भी हम लोग एक प्रोडक्ट या ब्रांड नेम हम लोग पहले एक डिस्कस करते हैं कि भाई ये ब्रांड जो है या ये नेम जो है वो मार्केट में एक कैची वर्ड रहेगा या इस ब्रांड से रिलेट करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक पब्लिक सर्च करते हैं इनिशियली कि वेदर द सेड मार्क इज अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट रजिस्टर. सो हम सर्च करने के बाद फिर नेक्स्ट जो है उनको क्लियर करते हैं कि भाई ये ब्रांड नेम इज अवेलेबल एंड इट इज क्लियर इन ट्रेडमार्क सर्च. आफ्टर दैट जो कंपनीज हैं वो फिर ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करती हैं और ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के नियर अबाउट इट टेक्स 12 to 15 months टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. इनिशियली 15 to 20 days में हम लोग TM नंबर दे देते हैं और उसके बाद फिर आप जो TM लिख करके वो प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और वो ट्रेडमार्क नंबर ही आफ्टर रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है. बस इनिशियली ट्रेडमार्क TM जो हम लिखते हैं इट स्टैंड्स फॉर ट्रेडमार्क अप्लाइड एंड जो R लिखते हैं इट स्टैंड्स फॉर इट इज अ रजिस्टर्ड ब्रांड एंड जो C लिखते हैं राइट साइड में अपवर्ड इन द सर्कल तो इट स्टैंड्स कि भाई इट इज कॉपीराइटेड. मींस कोई भी डिजाइन कलर कॉम्बिनेशन या उसका सिमिलर कोई भी मिलता जुलता कोई नाम भी या उसका डिजाइन भी कोई यूज नहीं कर सकता. और आफ्टर ऑल मतलब देखिए जैसे अगर कोई डुप्लीकेसी होती है, अब जैसे हमने ट्रेडमार्क करवा लिया और हमको पता चला कि भाई कोई सिमिलर ब्रांड या सिमिलर सर्विसेज जो हम लोग रजिस्टर्ड हैं वो अगर कॉपी कर रहा है तो इनिशियली हम उसको पहले नोटिस देते हैं और अगर नोटिस देने के बाद भी विद इन मंथ और 2 पीरियड अगर वो मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग अंडर ट्रेडमार्क उन पे इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ का सूट फाइल करते हैं बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज. इन्फ्रिंजमेंट जो है दैट इज एक्शन इज टेकन फॉर रजिस्टर्ड ब्रांड्स और पासिंग ऑफ एक्शन जो है वो जो अनरजिस्टर्ड ब्रांड रहते हैं. भाई हमने अप्लाई कर दिया बट हमारा अंडर प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, भाई 1-1.25 साल का प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, तो फिर हम लोग जो है उसमें पासिंग ऑफ का सूट फाइल करते हैं. बट अगर आपका कॉपीराइटेड है जो प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज और सिमिलर ब्रांड या सर्विसेज कोई अगर मार्केट में लॉन्च करता है या उसको एडवर्टाइज करता है तो हम लोग डायरेक्टली उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकते हैं. वी कैन डायरेक्ट फाइल अ पुलिस कंप्लेंट बिफोर SP और वो फिर पुलिस वहाँ पर डायरेक्टली रेड करके वो उनको सील कर देती है वो प्रीमाइसेस को और आफ्टरवर्ड्स जो भी मतलब जो गुड सील होते हैं तो फिर वो कोर्ट में वो जाकर के फिर वापस से वो अपना डिटेल दे करके वो छुड़ा सकते हैं. अदरवाइज अगर वो प्रूफ हो गया कि भाई दे आर डुप्लीकेटर्स तो उनको एज पर कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 65 मतलब 14 days का MCR भी हो सकता है. सो उसके अलावा और कुछ आपको डिटेल पूछना है? Harish Bhaiya, you can stop screen share so that you will come on the main screen. And we can now also if you can tell us why this is important आज की तारीख में. So देखिए important है कि भाई if we want to create a brand value in the market, अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक सिर्फ कमोडिटी बना के रखना चाहते हैं कि भाई वो प्राइस कैटेगरी में रहे, भाई मतलब 1 और 2 रुपए जैसे जनरली मार्केट में जो कंपटीशन होता है प्राइस वैल्यू को लेकर, तो अगर हम उसको एज ए कमोडिटी सेल करना चाहते हैं तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन का कोई नीड नहीं. अगर हम उस प्रोडक्ट को उतनी क्वालिटी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके उसको एक ब्रांड वैल्यू उसकी बनाते हैं कि भाई आज नहीं मतलब
जो जनरेशन्स हैं भाई, जो ट्रेडमार्क कॉपीराइट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे जिस तरह से हमारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हम लोग विल के थ्रू अपने सक्सेसर्स को ट्रांसफर करते हैं, सिमिलरली ट्रेडमार्क जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इट कैन बी पास्ड बाय विल टू आवर सक्सेसर्स। तो भाई आज जैसे हल्दीराम की एक जनरेशन हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, तो वो कंटिन्यूस वो जनरेशंस उसका बेनिफिट ले सकती हैं अगर हमने आज उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया। अदरवाइज भाई आपने मेहनत किया तो आपके जो बिजनेस का जो सक्सेसर्स है उनको उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? भाई हम उनके लिए एक एसेट छोड़ के जा रहे हैं भाई। भाई वो मतलब वो ब्रांड वैल्यू को यूटिलाइज करके आज हम कंपनी पार्ले जी, हल्दीराम या हिंदुस्तान लीवर के ओनर का नाम से नहीं पहचानते, हम उनके ब्रांड के नाम से पहचानते हैं। तो दैट इज द बेसिक थिंग कि भाई आज निरमा ब्रांड है तो निरमा ब्रांड भाई उसका ओनर कौन है हमको आज तक नहीं पता, बट हमको वॉशिंग पाउडर चाहिए तो निरमा चाहिए, ये एक उसकी ब्रांड वैल्यू है। What is the procedure? How do I file it? मतलब जैसे किसी को ट्रेडमार्किंग करवाना है, whatever it is. So what exactly is the procedure? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे मैं हॉस्पिटल्स के काफी ट्रेडमार्क किए हैं, तो हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री में जनरली आपको अगर इन फ्यूचर अपने ब्रांचेस आपको एक्सपैंड करने हैं भाई, आपको मतलब जैसे नागपुर में ही या नागपुर के बाहर, तो ट्रेडमार्क इज ग्रांटेड थ्रू आउट इंडिया अनलेस एंड अनटिल वी प्रोहिबिट। मतलब हम अगर उसमें अगर कंडीशन डालते हैं कि भाई हमको पर्टिकुलर विदर्भ में यूज करना है या महाराष्ट्र में यूज करना है या कुछ स्टेट्स हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, तो फिर उसमें लिमिटेशन आता है। अदरवाइज डिपार्टमेंट जो है वो आपको थ्रू आउट इंडिया यूज करने के लिए देता है। तो आप इनिशियली हमको पहले नाम देंगे कि भाई मुझे ये नाम से अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक मुझे रजिस्टर करवाना है। तो जैसे प्रॉपर्टी में एक सर्च रिपोर्ट होती है कि भाई टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट मिलती है प्रॉपर्टी में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टाइटल क्लियरेंस करते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूट में तो नहीं है या कोई उस पर बैंक लोन तो नहीं है। सिमिलरली ट्रेडमार्क में हम लोग पहले एक सर्च रिपोर्ट निकालते हैं कि भाई वो जो नेम है, नेम ही एक प्रॉपर्टी है, तो वेदर वो रजिस्ट्रेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि क्या होता है बहुत से टाइम में भाई हमको पता नहीं होता, हम लोग कैसा है कि भाई जो नॉन रजिस्ट्रेबल नेम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सुपर वर्ड है, बिग, या मतलब जो कॉमन वर्ड्स है जो हम लोग डे टू डे मतलब इसमें यूज करते हैं, तो दैट आर नॉट रजिस्ट्रेबल वर्ड्स, तो वो डिपार्टमेंट उसको डिस्क्रिप्टिव मार्क में डाल देता है। और जैसे फ्लावर्स के नेम हैं या आपके मॉन्यूमेंट्स हैं या इस टाइप के नेम हैं, वो भी आप रजिस्टर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये चेक करते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव मार्क तो नहीं है, और अगर वो भी है उसके बाद अगर वो पर्टिकुलर मार्क और मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग तो नहीं है किसी का ऑन रिकॉर्ड। अगर वो एग्जिस्टिंग है तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि भाई आप वो थोड़ा मिलता जुलता या प्रीफिक्स सफिक्स लगाकर आप उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए कि भाई हम ऐसा ना हो कि किसी की कॉपी कर रहे हैं हम लोग। तो फिर सर्च रिपोर्ट आने के बाद फिर हम लोग उस पर आपको एडवाइस करते हैं कि भाई आप ये नाम थ्रू है आपका, जो भी आप 2-4-5 ऑप्शंस देंगे, फिर उसके बाद फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। हरीश जी, ये कितने टाइम का प्रोसेस होता है अगर अपन अप्लाई किए उसके बाद में? ट्रेडमार्क देखिए इनिशियली 15 to 20 डेज में हमको टीएम नंबर मिल जाता है। आफ्टर दैट इट टेक्स नियर अबाउट 12 to 15 मंथ्स फॉर गेटिंग इट रजिस्ट्रेशन, बिकॉज वो वेरियस स्टेजेस होती हैं। जैसे इनिशियली हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो जैसे एक वियना कोडिफिकेशन है, मतलब एक नाइस क्लासिफिकेशन है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, उसके थ्रू जाता है कि भाई हमने जैसे टोटल 45 क्लासेस हैं, तो अब जैसे ऋषभ भाई की क्लास है वो कम्स अंडर क्लास 20 अबाउट फर्नीचर्स। अब अगर आप जैसे देखें कि भाई रेस्टोरेंट्स है तो रेस्टोरेंट्स जो है क्लास 43 में आती है और हॉस्पिटल जो है वो क्लास 44 में आते हैं। तो वेदर हमने जो अप्लाई किया है वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने अप्लाई किया है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीएनए कोडिफिकेशन होता है, अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं आया तो फिर वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लिए जाता है। फिर एग्जामिनेशन रिपोर्ट होने के बाद अगर एग्जामिनेशन रिपोर्ट डिपार्टमेंट को लगता है कि वो मार्क क्लियर है तो वो डायरेक्टली उसको जर्नल में पब्लिश कर देंगे और विद इन 4 months वी गेट ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर कोई अपोजिशन फाइल नहीं होता है उस एप्लीकेशन में, और अगर कोई अपोजिशन फाइल हो गया तो फिर वी विल हैव टू फाइल अवर रिप्लाई। और इनिशियली अगर समझ लीजिए डिपार्टमेंट को लगा कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हमने हल्दीराम के लिए अप्लाई किया तो हल्दीराम ऑलरेडी मार्क एग्जिस्टिंग है ऑन रिकॉर्ड, तो फिर वो साइटेड मार्क डालते हैं कि भाई सिमिलर मार्क एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड, तो भाई आप अपना रिप्लाई फाइल कीजिए कि हम आपके ब्रांड को रजिस्टर क्यों करें व्हेन सिमिलर मार्क इज ऑन रिकॉर्ड।
तो फिर हम अपना क्लेरिफिकेशन देंगे कि भाई हम प्रायर यूजर हैं, ये ब्रांड जो है आज 20 साल से यूज कर रहा है, हम इससे 30 साल 40 साल पहले से यूज कर रहे हैं। जैसे प्रॉपर्टी में है, अगर आपके पास सेल डीड है और आपके पहले अगर कोई निकल जाता है जिन्होंने ऑलरेडी एग्रीमेंट ऑफ सेल या कुछ भी डॉक्यूमेंट उसके पास मिल जाता है, तो वो प्रायर यूजर कहलाता है। तो उसका भी एक राइट हो जाता है कि भाई आपकी सेल डीड कैंसिल करा करके वो रजिस्ट्री करवा सके। तो सिमिलरली ट्रेडमार्क में भी होता है कि अगर जो प्रायर यूजर होता है तो वो मतलब एलिजिबल होता है फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। हरीश जी, इसमें 2 एग्जांपल मेरे को याद आ रहे हैं। एक तो बासमती राइस के लिए इंडिया और पाकिस्तान फाइट कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जी, और दूसरा रसगुल्ले के लिए उड़ीसा और बंगाल वाले फाइट कर रहे हैं ट्रेडमार्क के लिए। हाँ वो सर जो रसगुल्ला वाला पार्ट हो गया ना, वो मतलब ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन में आ गया। मतलब Yes. ये लोग कैसा है कि पर्टिकुलर ये रीजन में जैसे पैठनी साड़ी का है, हाँ. तो जो उसमें प्रायर यूजर जो भी क्लेम करेगा कि भाई हमने ये जो पर्टिकुलर नेम है या जो पर्टिकुलर गुड्स है वो हम पहले से यूज कर रहे हैं, तो दे विल विन द केस। प्रायर और जेन्युइन यूजर मेन क्राइटेरिया रहता है। भाई आपने समझ लीजिए कि 2000 से आपने ब्रांड यूज करना शुरू कर दिया और उसके बाद आपने 10 साल वो ब्रांड को यूज ही नहीं किया और आप सीधा यूजर क्लेम कर रहे हैं कि भाई 10 साल पहले का, तो भाई आप जेन्युइन यूजर का एक डेफिनेशन होता है इसमें कि भाई आप एवरी ईयर ये ब्रांड के अंडर में आपको सेल परचेज फिगर या कंटिन्यूस यूजर में आपको एक एफिडेविट स्वेयर करके फाइल करना पड़ता है कि भाई हर साल हमने ब्रांड के अंडर में इतना इतना सेल किया, तो फिर आप वो जेन्युइन यूजर की कैटेगरी में आ जाते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। Elka wants to know कि copyright और trademark to be done geographically, मतलब limited to one city, state, कैसा रहता है? And then can even copy our work in other state? जैसे मैं नागपुर के लिए करवाऊंगी कि I'll do it for pan India और pan महाराष्ट्र, कैसा होगा? नहीं, दैट यू हैव टू डिसाइड। भाई आप डिसाइड करेंगे कि मुझे इस ब्रांड को मतलब लोकल ब्रांड रखना है या पर्टिकुलर महाराष्ट्र में ही सेल करना है, या मुझे उस ब्रांड को थ्रू आउट इंडिया, जनरली हम लोग थ्रू आउट इंडिया के लिए अप्लाई करते हैं। और बहुत लिमिटेड ऐसे ब्रांड्स होते हैं जब कभी ऐसा लगता है कि भाई वो ब्रांड हम लोग भाई जैसे नागपुर के नागपुर में यूज करेंगे, उससे ज्यादा हमको जाना नहीं है, तो फिर हम लोग एक उसमें कंडीशन डाल देते हैं कि भाई दैट ब्रांड विल बी यूज्ड फॉर सेल इन पर्टिकुलर दिस रीजन ओनली। तो फिर उस रीजन का हमको राइट मिलता है। उसके अलावा अगर कोई अप्लाई करता है तो फिर उनको राइट मिल जाता है। बहुत सी कंपनीज ऐसे होती है सर कि जैसे मतलब एसोसिएट करती हैं कि भाई ये स्टेट में ये ब्रांड जो है वो मैं यूज करूंगा, तो फिर वो मतलब जॉइंटली अप्लाई करती है कि वो अलग अलग स्टेट्स का राइट्स ले लेती है। सर एक रिलेटेड क्वेश्चन है। हेलो जी सर प्लीज। एक रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि बेसिकली अगर मेरी एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी आउट ऑफ इंडिया है, सो रूल ऑफ द लैंड उस कंट्री के लगेंगे ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, या मैं इंडिया में बैठ के वो सब चीजें कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए? नहीं, तो प्रोडक्ट ओरिजिनेट कहाँ पर हुआ है, इंडिया में हुआ है कि वहीं पे हुआ है? No, it's just a company which is a trading company in Singapore. Just to give you my example, I have a company in Singapore which is a trading company, but we do have a logo, we do have a punch line. So will हमको बेसिकली सिंगापुर में करना पड़ेगा या हमको इंडिया में करना पड़ेगा, यानी हम इंडिया से भी कर सकते हैं क्या उसके लिए, या लॉ ऑफ द लैंड इज इम्पोर्टेंट इन दैट केस? नहीं, लॉ ऑफ द लैंड इन सेंस कि भाई अब देखिए जैसे यूएस कंपनीज हैं तो वो पूरे जो मतलब WIPO में जैसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जितनी भी 195 जो कंट्रीज हैं जो मतलब बर्नर ट्रीटी में सिग्नेटरीज हैं, तो वो जो यूएस कंपनीज हैं वो पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड का रजिस्ट्रेशन ले लेती है। नहीं, दैट इज करेक्ट, बट जैसे मेरी कंपनी सिंगापुर में, तो मुझे ये जो पेटेंट राइट्स है या ट्रेडमार्क राइट्स है या रजिस्ट्रेशन राइट्स है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, वो मुझे सिंगापुर में अप्लाई करना पड़ेगा या मैं इंडिया में भी उसके अंडर में अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, आपका अगर बिजनेस सिंगापुर में है तो इनिशियली आपको सिंगापुर में ही अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको अगर बिजनेस एक्सपेंशन करना है कि भाई आप इंडिया में भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर आप ट्रेडमार्क इंडिया का भी ले सकते हैं। ओके। तो उसमें जो जो कंट्रीज में आपको रिक्वायर्ड रहता है कि भाई आपको इंडिया में लेना है, दुबई में, यूएई में लेना है, आपको यूएस में बिजनेस करना है, तो
या मतलब रशिया में, जो जो कंट्रीज को आपको ऐसा लगता है कि वहाँ हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है, वहाँ का आप मतलब एक प्रोटेक्शन लेकर के रख सकते हैं कि भाई आज नहीं कल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई जो हम लोग अप्लाई करते हैं ट्रेडमार्क में, तो वो हम लोग मतलब एक होता है कि भाई यूजर जो हम लोग शो करते हैं, एक प्रायर यूजर शो करते हैं और एक यूजर प्रपोज टू बी यूज शो करते हैं। तो अगर आप सिंगापुर में आप अप्लाई कर देते हैं तो आप सिंगापुर में तो वो ब्रांड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे यूज करेंगे कि भाई प्रायर डेट का आप यूजर डालेंगे। और अगर आपको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप अप्लाई करेंगे कि भाई प्रपोज टू बी यूज, मतलब इन टुडे और इन फ्यूचर हम लोग कभी भी उस ब्रांड को इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं, तो वी वांट प्रोटेक्शन ऑफ दैट ब्रांड नेम और लोगो। तो इस तरीके से आप प्रपोज टू बी यूज करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपने जैसे इसके पहले बताया कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है वो 10 इयर्स के लिए वैलिड होती है या 20 इयर्स के लिए वैलिड होती है इन केस ऑफ पेटेंट्स, और आपने साइमल्टेनियसली ये भी बोला कि आप यू कैन पास ऑन दिस पर्टिकुलर राइट्स टू अवर नेक्स्ट जनरेशन। सो 10 इयर्स के बाद में हम हमारे प्रोसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं या जैसे आप रिन्यू होता है सिमिलर, मतलब 10 इयर्स के बाद आप और 10 साल के लिए, जैसे एक पर्टिकुलर आप एनआईटी की लीज होती है या एनएमसी की लीज होती है 20-30 इयर्स के लिए होती है, आप उसके बाद उसको रिन्यू करते हैं फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स या 20 इयर्स। सिमिलरली आप ट्रेडमार्क को भी नेक्स्ट जो 10 इयर्स के लिए रिन्यू कर सकते हैं। कॉपीराइट पेटेंट के केस में बेसिकली 20 इयर्स का राइट्स दिया रहता है पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए, बट अगर मुझे वो पेटेंट चाहिए कोई थर्ड पर्सन का, सो मैं 20 इयर्स के बाद में अप्लाई करके उसके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ? इज दैट पॉसिबल? आफ्टर 20 इयर्स वो पब्लिक डोमेन हो जाता है। ओके, सो आई कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द, वो कोई भी यूज कर सकता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी। ओके, परफेक्ट। इतना टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट जा रही है, एडवांस्ड हो रही है कि भाई 20 इयर्स पहले का जो इन्वेंशन है वो आज की तारीख में आप उसको लेके क्या करोगे? नहीं सर, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन दैट, लाइक यूएस की टेक्नोलॉजी 20 या 25 साल के बाद में इंडिया में आती है, सो इट मेक्स सेंस कि अगर 20 साल में उनका पेटेंट राइट्स खत्म हो जाते हैं तो मे बी 21वें साल में इंडिया में जब उसका ग्रोथ आना चालू होता है तब मैं ले सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, उसमें थोड़ा मतलब वो क्या करते हैं सर कि यूएस कंपनीज, मैंने आपको जो बताया वो जो पेटेंट में वो पर्टिकुलर जो अगर मेडिसिन कंपनी है तो वो फॉर्मूला देगी, अगर जैसे तो वो क्या करते हैं सर उसमें थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस करके वो फ्रेश एप्लीकेशन कर देंगे उसमें। अच्छा, फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंजेस करके तो वो फ्रेश एप्लीकेशन जो रहेगी वो फिर 20 इयर्स के लिए वैलिड हो जाएगी। ओके, अगले We have one Thank you more so much, question. Yeah, we have one more question. What is the tentative pricing for trademark registration, patent, copyright? What are the approximate charges? ट्रेडमार्क का मैडम जैसे गवर्नमेंट इन फीस इज इनिशियली 4,500 फॉर सोल प्रोप्राइटर एंड इंडिविजुअल कैपेसिटी। अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी या सोल प्रोप्राइटरशिप में अप्लाई करना है तो गवर्नमेंट फीस 4,500। तो हम लोग जो है वो टोटल 10,000 चार्ज करते हैं फॉर ट्रेडमार्क। और अगर आपका उद्यम आधार लिया हुआ है और आपकी जॉइंट मतलब कंपनी है, मतलब इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है या आपका पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर आपने उद्योग आधार लिया है या उद्यम अभी उद्यम हो गया है तो वो उसके लिए फिर आपको उसमें 4,500 कंसेशन देती है गवर्नमेंट, आपका उतने में हो जाता है। और फिर आईएसओ रजिस्ट्रेशन में? आईएसओ रजिस्ट्रेशन डिपेंड्स कि भाई आपको कौन सा लेना है, मतलब क्वालिटी सर्टिफिकेशन बहुत सारे आते हैं, उसमें आप जो मतलब जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा उससे रिलेटेड फिर हम आपको कोट करते हैं कि भाई, और उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए रहती है। और नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि जो नॉर्मली 6 to 10,000 के अंदर आ जाते हैं आईएसओ, उससे ज्यादा नहीं। हेलो हरीश जी। जी हाँ, या एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि जो प्रायर यूज हम बोल रहे हैं, सपोज किसी के पास रजिस्ट्रेशन है और किसी का प्रायर यूज भी है, तो प्रायर यूज को प्रोटेक्शन मिलेगा फिर? हाँ, मतलब प्रायर यूज को हम आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ अपने, मतलब हम बोल देंगे कि भाई हम लोग 50 साल पहले से यूज कर रहे थे, तो गवर्नमेंट उसको डिपार्टमेंट कैसे एक्सेप्ट कि मेरे पास प्रायर यूज है? हाँ नहीं, देखिए आप प्रायर यूजर बोल रहे हैं कि भाई मैं, आप कितने साल पुराना प्रायर यूज अपना प्रूफ कर सकते हैं?
टेक एन एग्जांपल, आज मेरे किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया, वो सब प्रोसेस हो गया, पोजीशन भी नहीं हुआ, रजिस्टर्ड हो गया, और इफ समवन कैन प्रूव कि 10 साल पहले से यूज कर रहा है वो मार्क। हाँ, प्रूफ मतलब आप किस बेसिस पे, आपके पास सेल परचेस बिल है उसके? हाँ हाँ, तो पॉइंट ये है कि फिर रजिस्ट्रेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन वाला को क्या प्रिविलेज मिला, या रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑलवेज रिस्क तो है, फिर हमारे पास कोई भी प्रायर यूज प्रूव कर सकता है। प्रायर यूजर सर, जब तक वो सेल परचेस बिल मतलब एक तो है प्रायर यूजर और दूसरा है जेन्युइन यूजर। अगर आप रजिस्टर्ड हो गए फॉर एग्जांपल, तो आप जो है आपको तो पता चलेगा ना कि भाई सिमिलर ब्रांड मार्केट में एग्जिस्टिंग है, तो आप उसको यूज करने दोगे क्या मार्केट? नहीं, मेरा ये बोलना है हरीश जी कि एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद मतलब 100% हम लोग ये मतलब सिक्योर नहीं है, यदि कोई आदमी प्रायर यूज प्रूव कर सकता है तो स्टिल वो क्लेम प्रूव कर सकता है ना अपना। सर देखिए कैसा रहता है कि ऐसे जो मैटर्स हैं ये मतलब 2 to 5% ही रहते हैं, क्योंकि अभी मार्केट ऐसा हो गया कि मतलब आप देखिए डिजिटलाइजेशन का जमाना है, सबको पता चल जाता है कि भाई हर कोई अपना ब्रांड जस्ट डायल पे इस पे उस पे प्रमोट करता है। तो अगर सिमिलर ब्रांड मार्केट में एग्जिस्टिंग है या सर्विसेज एग्जिस्टिंग है, तो हमको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि वो ब्रांड जो है वो मार्केट में एग्जिस्टिंग है। ओके ओके, इसमें ये मतलब आप प्रॉपर्टी भी ले लीजिए ना कि भाई आपके पास अगर कोई एक प्रॉपर्टी है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें भी आपको एश्योर मतलब जो प्रायर यूजर आपको अगर कोई अगर 20-25 साल पहले वाली सेल डीड अगर उसकी या कोई एग्रीमेंट ऑफ सेल निकल गई, तो वो भी तो आपके ऊपर क्लेम कर सकता है ना, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ओके, मतलब स्टिल क्लेम वैलिड है, मतलब प्रूफ करना पड़ेगा डेफिनेटली। भाई देखिए, एक तो आपको प्रायर यूजर प्रूफ करना है, आपको सेल परचेज बिल एवरी ईयर के उसको डिपार्टमेंट को आपको मतलब शो करना है। और जनरली ऐसा होता नहीं है कि भाई जो ब्रांड रजिस्टर्ड है वो अगर दूसरा ऑलरेडी चल रहा है तो उसको चलने देगा। वो तो अगर उसका रनिंग ब्रांड है तो वो उसको सिविल सूट फाइल करके या इंजंक्शन लेकर के उसको बंद ही करा देगा तुरंत, क्योंकि उनके कस्टमर इसी डाइवर्ट हो जाएंगे ना। जो ओके, थैंक यू हरीश जी, हरीश जी, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स लाइक ऐप और सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या ट्रेडमार्क्स या रजिस्ट्रेशन या कॉपीराइट हो सकते हैं? हाँ, वो कॉपीराइट हो सकता है ना सर डिजिटल बट प्रोडक्ट्स। ओनली नेम के वी कैन हैव सम इंटरनल पार्ट्स लाइक रिपोर्ट्स है, कुछ स्क्रीनशॉट्स है, वो सब भी रजिस्टर करवा सकते हैं? मतलब उससे रिलेटेड जो अपन उसमें हम पुटअप करेंगे एप्लीकेशन के साथ, मतलब जो सॉफ्ट कॉपी देंगे उसको पूरा ईच एंड एवरीथिंग विल गेट प्रोटेक्शन फॉर दैट। हम एज अ सॉफ्टवेयर करके उसको अप्लाई कर रहे हैं या हम एज उसको लिटररी करके अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जैसे उसके अलग अलग वेरियस कैटेगरीज में हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर हम लोग उस पर्टिकुलर डिजाइन को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो हम एज अ लोगो करके अप्लाई करेंगे। और अगर हमको अगर वो पूरा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी इंटरनल जो भी आप कह रहे हैं, तो हमको एज अ सॉफ्टवेयर करके उसको अप्लाई करना पड़ेगा। या हम पर्टिकुलर जैसे एक बुक है उसको अप्लाई करेंगे तो हम लोग उसको लिटरेरी करके अप्लाई करेंगे। तो जिस कैटेगरी में हम लोग अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, I would request participants to please raise their hand and not ask out of turn. Gautam ji, please ask your question. हरीश जी, गुड मॉर्निंग। अपने जनरली ट्रेडिंग हाउस के लिए किस तरीके का ISO रजिस्ट्रेशन कराना सुटेबल है? ट्रेडिंग हाउस में सर आपका गवर्नमेंट सप्लाई भी है क्या? यस, गवर्नमेंट सप्लाई भी है, उद्यम आधार भी है हमारा। गवर्नमेंट सप्लाई के लिए तो ISO 9001 2015 सफिशिएंट है। अभी जनरली सब वही ले रहे हैं 2015। जी जी। और क्या उसके लिए क्या चार्जेस लगते हैं, और 3 साल की वैलिडिटी के लिए क्या उसकी लाइबिलिटीज रहती हैं? 3 साल वैलिड रहता है और नियर अबाउट आप समझ लीजिए ना कि 6000 के आसपास हो जाता है। पार्डन? 6000 में हो जाएगा वो। 6000 में, फाइन। और अगर उसी का लोगो अगर अपन ने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड लोगो रजिस्टर्ड करवाना है तो व्हाट विल बी द चार्जेस अगेन? सर ट्रेडमार्क में सिर्फ नेम कवर होता है, लोगो इज कवर्ड अंडर कॉपीराइट एक्ट। तो आपको देखिए, हम ट्रेडमार्क में लोगो तो अप्लाई करते हैं, बट इन फ्यूचर अगर उसमें लोगो में मतलब आप समझ लीजिए कि आपने फॉर एग्जांपल पार्ले
जी बिस्किट का है, तो अगर किसी ने ट्रेडमार्क लिया है पार्ले का, तो वो पार्ले नेम ट्रेडमार्क के अंडर जाएगा, और वो जो एंटायर आर्टिस्टिक वर्क जो डिजाइन है वो कॉपीराइट के अंदर जाती है। तो कॉपीराइट के अंदर में अगर कोई डुप्लीकेसी होती है तो वो स्लाइटेस्ट रिजेम्बलेंस इज नॉट आल्सो अलाउड। मतलब अगर दूर से देखने में अगर कंज्यूमर जो है उसको ऐसा लग रहा है कि वो पार्ले का प्रोडक्ट है, तो वो विल कम अंडर कॉपीराइट एक्ट। तो फिर वो कंपनी जो है वो डायरेक्ट उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फाइल कर सकती है। फाइन। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ा और सिंपल वे उसमें समझाता हूँ कि भाई अगर आपकी फार्मा कंपनी है तो आपको लोगो कराने की जरूरत नहीं है। आपको आपके नाम से ही आपकी मतलब आइडेंटिटी है। भाई आप जैसे क्रोसिन है, मेटासिन, जो भी है, आपको नाम से ही प्रोडक्ट बिकता है फार्मा में। और जो लोगो है वो ज्यादातर जो फूड इंडस्ट्रीज हैं और मतलब जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा लोगो करवाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई जैसे मतलब रेडीमेड गारमेंट्स वाले हैं तो वो ये सब कॉपीराइट के लिए, या फर्नीचर हैं तो जिसका ऐसा लगता है कि भाई लोगो भी कॉपी हो सकता है। अपन का एक कोई फूड आइटम है, सपोज एक मसाला टी है, टी है, और मसाला टी का डिफरेंट ऑफ एडिटिव अपन इसमें डालते हैं, तो क्या वो एडिटिव अपन कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवा सकते हैं? आपका फॉर्मूला है जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, क्या वो उसमें पेटेंट करवा सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल को? फॉर्मूला बोल रहे हैं ना आप? फॉर्मूला। हाँ, वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, बट वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि मतलब वो सिमिलर फॉर्मूला मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कि नहीं वहां पर। ओके। तो वो पहले इनिशियली वो लोग सर्च करते हैं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रजिस्ट्रेबल और नॉट, और रजिस्ट्रेबल है तो वो ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग है क्या सिमिलर फॉर्मूला। ओके। ये सिंचाई का भी इसमें कोई कंट्रोल रहता है? FSSAI इज ऑलटुगेदर डिफरेंट, वो उनको तो सिर्फ लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। ओके, उसमें कोई कंट्रोल नहीं उनका? नहीं, ये ऑलटुगेदर डिफरेंट डिपार्टमेंट। इसका फूड से, टैक्सेशन से या कोई अदर डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। ओके, फाइन, थैंक यू। वेलकम सर। सर ये कितना, जैसे पेटेंट के लिए कोई अप्लाई करता है तो हाउ मच टाइम इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली? 18 to 24 months to get the patent. Patent registration. Do we have more questions? Sharad bhaiya, please ask your question. Sharad bhaiya? Yes sir. हरीश सर, मुझे ये पूछना है कि जैसे हम लोगों ने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दिया जी, और इमीडिएटली वील स्टार्ट, क्योंकि हमको टीएम नंबर मिल जाता है उस केस में, इमीडिएटली हम लोग उस ट्रेडमार्क को यूज करना, ब्रांडिंग करना, मार्केट करना स्टार्ट कर देते हैं जी। और एज यू सेड कि ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है इट टेक्स अराउंड 18 to 24 मंथ्स टू कंप्लीट जी। व्हाट इफ कि अगर ये 24 महीने बाद में या 2 साल बाद में आप मुझे बोलते हैं कि यार ये ट्रेडमार्क रिजेक्ट हो गया, मतलब अप्रूव नहीं हो सकता, तो उस केस में मेरा जो 2 साल का मेहनत रहता है उस ब्रांड के ऊपर, उसका क्या होगा? तो वो मैंने पहले ही आपको बताया ना सर कि पहले इनिशियली हम लोग एक पहले सर्च करते हैं ट्रेडमार्क की, वेदर द नेम इज अवेलेबल और नॉट फर्स्ट, और सेकेंडली द मार्क इज रजिस्ट्रेबल और नॉट। अब आपने समझ लीजिए अप्लाई कर दिया कि भाई मुझे रोज के नाम से ट्रेडमार्क चाहिए, तो जो फ्लावर नेम्स हैं ये मतलब जो मतलब ये जो कॉमन नेम्स है नॉन रजिस्ट्रेबल डिस्ट्रिक्टिव मार्क में कहलाता है, मतलब कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब चीजें आपको इनिशियली आपके लॉयर गाइड करेंगे कि भाई आपका ये एप्लीकेशन थ्रू होगा या नहीं होगा, या कितने % चांसेस हैं वो थ्रू होने के। तो वो आपके जो एडवोकेट है उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रजिस्टर्ड वो किस लेवल पे वो एप्लीकेशन को क्लियर कराता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, आईएसओ के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो देयर आर वेरियस बोर्ड्स ऑफ आईएसओ, उसमें क्या डिफरेंस रहता है? तो उसमें कैसा है, वेरियस ग्रांटिंग अथॉरिटीज हैं। अब वो कुछ जो जनरली अभी जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं वही मतलब और कैसा रहता है कि अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग इसमें क्राइटेरिया आपसे मांगता है। तो उस आपको किस जगह पे सप्लाई है, भाई आपको फूड प्रोडक्ट है
या आपका कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सप्लाई, जब के वाटर टैंक्स हैं, स्टोरेज, वाटर स्टोरेज टैंक्स, तो वो अलग अलग इसके अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। तो फिर उस हिसाब से हम आपको मतलब गाइड करते हैं कि भाई आप इसका ISO लीजिए या वो कंपनी का लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली वो रहता है सर। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भी तो ISO प्रोवाइड करता है ना हमको। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि उसमें फिर क्या है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके रेट वेरी हो जाते हैं। तो फिर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, इनिशियल रिक्वायरमेंट है या आपको गवर्नमेंट सप्लाई है, किस चीज का है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई आप इनका रजिस्ट्रेशन लीजिए। तो वो फिर आपको भाई आपको बिजनेस में भी तो हेल्पफुल होना चाहिए ना वो सब चीजें। अदरवाइज आप लाख रुपए खर्चा कर दो, आपको यूज में कुछ नहीं है, तो फिर क्या मतलब है। ओके, थैंक यू सर। अभय बोरा, Abhay Vora wants to ask a question. Please. हरीश भाई, हमने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया, वो वियना कोडिफिकेशन के लिए गया, अब उसके बाद उसका स्टेटस ऑब्जेक्टेड है, तो इसका मतलब क्या होता है और अब आगे क्या करना रहेगा? आप अपने एप्लीकेशन की बात करें ना जी। हाँ, अभी ऑब्जेक्टेड है और सिमिलर साइटेड मार्क्स हैं, तो हमने उसमें प्रायर यूजर जो है वो पुटअप किया है। उसमें कैसा रहता है सर कि एक क्लासिफिकेशन भी रहती है डिटेल्स की, भाई जैसे फॉर एग्जांपल अपनी जो कैटेगरी है, जो रूफिंग शीट्स जो कैटेगरी है, तो उसमें और भी कुछ मतलब प्रोडक्ट्स आते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन में हम लोग जब हियरिंग अटेंड करते हैं, तो फिर जो डिपार्टमेंट जो ऑफिसर रहता है, उनको हम लोग कन्विंस करते हैं कि सर ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी में ये नाम जो है किसी और का रजिस्टर्ड नहीं है। ये जो स्टेटस, ये ऑब्जेक्शन कौन डिपार्टमेंट पुट करता है या कोई अदर हमारा कोई आइडियल जिसका नाम रजिस्टर्ड होगा उसने क्या होगा? नहीं, ऑब्जेक्शन जो है वो डिपार्टमेंट इंटरनल डिपार्टमेंट का रहता है, और उसमें वो साइटेड मार्क्स आते हैं कि भाई 2, 4, 5 सिमिलर मार्क्स और ऑन रिकॉर्ड। तो वो हमको हियरिंग, जैसे अभी ऑब्जेक्टेड के बाद नेक्स्ट स्टेज है वो हियरिंग के लिए लगेगा। तो हियरिंग में कैसा होगा कि हम लोग सेल परचेज बिल्स और यूजर एफिडेविट वो हम लोग डिपार्टमेंट को मतलब प्रूफ करने के लिए देते हैं कि भाई देखिए हम लोग ये कंटिन्यूसली और मतलब जेन्युइनली ये नाम यूज कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि भाई किसी और से हम लोग का जो ब्रांड है वो मतलब क्लैश नहीं हो रहा है, तो फिर डिपार्टमेंट हमको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देता है। तो वो फिर एक्सेप्टेड स्टेटस दिखाएगा आफ्टर हियरिंग, और एक्सेप्टेड होने के बाद वो जर्नल में पब्लिश होता है, और उसके बाद 4 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है आफ्टर पब्लिकेशन इन जर्नल। और विद इन 4 मंथ्स अगर किसी अदर पार्टी, जो आप बोल रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्टेड, और वो जो आपने बताया ऑब्जेक्टेड, मैं जो आपको बता रहा हूँ अदर पार्टीज जो फाइल करते हैं दैट इज अपोजिशन। ओके। तो वो जो अपोजिशन जो 4 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रहता है जो आफ्टर पब्लिकेशन इन जर्नल ऑफ ट्रेडमार्क, तो वो टाइम पे फाइल किया जा सकता है अपोजिशन। अभी इनिशियली डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन है और हमने विद इन अ मंथ हमको अपना रिप्लाई फाइल करना पड़ता है, अपन ने फाइल कर दिया। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। ऋषभ भैया, you want to ask? हरीश जी, मान लीजिए कोई ब्रांड है जिसने अपना ट्रेडमार्क और कॉपीराइट करा के रखा है, बट जिसके बारे में जियोग्राफिकली दूसरे कोई एरिया में लोगों को पता नहीं है, और वहां पे वो अपने आप में अपना एक ब्रांड बना के वहां पे एस्टेब्लिश हो गए हैं। ऐसे में अगर कभी किसी का अगर आया है, तो ये जो बंदा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है या जो भी है, छोटा मोटा अपने आप की आइडेंटिटी बना के, तो उसको कोई स्पेसिफिक इंडेमनिटी मिलती है क्या कि भाई लैक ऑफ नॉलेज के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है, कि देयर आर सीरियस रिपरकशंस टू दिस? सर बहुत से मैटर्स में ऐसा होता है कि जो जैसा आप बोल रहे हैं वो रिमोट विलेज टू बिलोंग करता है, मतलब वहाँ पे जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, भाई एक रिमोट टाउन है जहाँ पे मतलब किसी को पता ही नहीं कि भाई ये सब चीजें, और उसका ब्रांड चल निकला मार्केट में और उसको अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। तो बाद में क्या होता है सर कि वो अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सेल परचेज बिल और जो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड, जैसे आपका गुमाश्ता हो गया या आपका मतलब जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अगर उसके पास हैं तो वो प्रूफ कर पाएगा कि भाई मैं जेन्युइन या प्रायर यूजर हूँ। अगर समझ लीजिए कि वो एक वर्बली बोल रहा है कि भाई मैं इतने साल से यूज कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट उसको कैसे बिलीव करेगा कि भाई वो इतने साल से यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या अभी उसने स्टार्ट किया या कब स्टार्ट किया। तो अनलेस एंड अनटिल कि भाई
वो कोई प्रूफ कर पाए विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो ही वो मतलब केस जस्टिफाइड रहेगा और जीत सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है उसके। Okay. Thank you, sir. One last question we have, Rotarian Ladda ji wants to ask, is copyright protected across all classes? जैसे food में है copyright, तो somebody who deals in hosiery or other sector, तो वो नाम use कर सकता है कि कैसा? नहीं, देखिए कैटेगरीज जो है वो सिर्फ ट्रेडमार्क में है, टोटल 45 क्लासेस हैं उसमें, और कॉपीराइट में सच कोई कैटेगरी नहीं है। कॉपीराइट जो है वो एक जनरल मतलब लोगों के लिए ग्रांट किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ट्रेडमार्क, जैसे हमने फॉर एग्जांपल फर्नीचर के लिए ट्रेडमार्क लिया अंडर क्लास 20, तो हम उसको एसोसिएट कर देंगे इन कॉपीराइट कि भाई ये पर्टिकुलर लोगो जो हम फर्नीचर के लिए यूज कर रहे हैं, तो अगर हम किसी को रोकना चाहते हैं फॉर पर्टिकुलर वो लोगो या नाम यूज करने के लिए, तो फिर हम लोग ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट के साथ कॉपीराइट सर्टिफिकेट भी अटैच करेंगे। तो फिर मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनको क्लियरली मेंशन रहता है कि भाई ये जो है ये मतलब पर्टिकुलर ये बिजनेस के लिए इन्होंने ट्रेडमार्क लिया है, तो फिर उसको फिर मतलब बाकी दूसरे इसमें कर सकते हैं, वो सेम नेम दे कैन यूज। हाँ देखिए, मतलब अगर वो ट्रेडमार्क उसका उस कैटेगरी में नहीं लिया हुआ है, अगर आपने समझ लीजिए कि फूड में लिया है और आपने रेडीमेड में नहीं लिया है, तो फिर रेडीमेड में अगर वो क्लास खाली है तो वो कोई भी रजिस्टर करा के उसको यूज कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल आप उसको अपोजिशन फाइल करके रोके कि भाई इन फ्यूचर मेरा प्लानिंग है रेडीमेड भी स्टार्ट करने का। तो इट्स अप टू यू कि भाई आप उसको रोकना चाहते हैं या आप उसको बिजनेस करने देना चाहते हैं। तो रजिस्टर टू डिसाइड। नहीं, इन केस ऑफ से पार्ले जी सर, फूड के अंदर में कॉपीराइट भी है और ट्रेडमार्क भी है जी। नाउ समबडी यूजेस पार्ले जी माचिस और वो स्पेलिंग पार्ले का गलत लगता है, बट स्टाइल इज सेम एज कॉपीराइट, विल पार्ले जी गेट द प्रोटेक्शन बिकॉज पार्ले जी इज नॉट इन द माचिस? सर ये जो एफएमसीजी कंपनीज रहती हैं, हाँ, कोई भी कैटेगरी जो है वो छोड़ती नहीं है, पूरे कैटेगरीज को ब्लॉक कर देती है, मतलब इवन इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि इनके मेजर मतलब एक्सपोर्ट ही रहता है बिजनेस। तो उसमें कैसा रहता है कि सर ये प्रपोज टू बी यूज करके अप्लाई करते हैं। बट इज देयर अ टाइम लैग समथिंग लाइक प्रपोज टू बी, सो यू कैन नॉट बी इंडेफिनिट? अब अमूल जैसे है वो बनियन में कभी नहीं आने वाला है, बट यू सी द पीपल, समबडी इज यूजिंग अमूल बनियन, और नो स्टाइल उसने कॉपीराइट हमारा नहीं किया, बट अमूल स्टाइल में अमूल बनियन लगा दिया उसने। बिल्कुल बिल्कुल। एंड नथिंग कुड बी डन, मतलब वी फॉट, मतलब आई एम फ्रॉम अमूल, वी फॉट, बट समहाउ he won the case, and today Amul Banyan is so using that name for this kind of product and is getting the benefit out of that. हाँ सर, वो लक्स में भी वैसे ही हुआ ना सर। लक्स में जो मतलब आप उसका अगर केस लॉ पढ़ेंगे कि भाई उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर के अगेंस्ट में जो लक्स जो इनरवेयर है वो केस उसके अगेंस्ट में जीत गया ना। तो उसने क्या किया, अमूल मतलब अमूल का कॉपी स्टाइल तो नहीं लिया उसने, बट अमूल नेम सिंस इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन द होजियरी, ही इज यूजिंग इट इन अ डिफरेंट स्टाइल। हाँ, तो उसने केस लॉ उसी का साइड किया होगा ना सर। हिंदुस्तान लीवर का जो लक्स और इसके अगेंस्ट में हुआ था, जो लक्स इनरवेयर आता है, तो उनका जो मैटर था वो सिमिलर पॉइंट्स पे था। करेक्ट करेक्ट। तो उस ग्राउंड पे उसने साइटेशन करके उसके फेवर में जजमेंट आ गई होगी इमीडिएटली। बट ये प्रपोज टू बी का कोई डेफिनेट पीरियड रहता है कि इतने साल में वगैरह में? तो वन कैन ऑलवेज जनरली 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर, तो दैट इज व्हाट इट, देयर इज जनरली नो मेनी कंपनीज प्रपोज लिख के गेट अवे नहीं हो सकती है। सर मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक राजनांदगांव वाली पार्टी थी, मैंने उनको GOT करके अप्लाई किया था, तो डिपार्टमेंट से क्लियर भी हो गया, पर रिलायंस ने एक साथ 5-6 अपोजिशंस डाल दिया। तो अब सर छोटे गांव का बंदा कहाँ लाख रुपए खर्चा करेगा रिप्लाई फाइल कर, उन्होंने वो विड्रॉ कर दिया अपना। अच्छा, पेइंग कैपेसिटी भी नहीं रहती ना सर रिमोट का जो
Can you guide on CE marking? Pardon? Somebody is asking, can you guide on CE marking? Atul Bhaiya. He is asking CE marking. CE. ये मैं नहीं करता हूँ। ठीक है ना? I think we are done with the question answers. So it was really a great session, very informative, and it benefited most of our users. And I would like to thank Mr. Sumiani ji for taking his time out on this Sunday morning. Also, I would like to thank President of RC Rotary Club of Nagpur Ishania, Mr. Pritesh Chandak, Secretary Dr. Baheti, and Club Admin Rotarian Sharat Tauri ji, IT Cell Coordinator Rotarian Rushabh Shah ji for helping me out throughout the session. And last but not the least, the August audience, fellow Rotarians and Rotarians, for sparing your valuable time. Thank you very much. Thank you. Thank you, Harish Bhaiya. Welcome, Rishabh. Thank you, Harish sir. Thank you. It was a really very good session. Welcome, sir. हरीश जी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई आपके आज के लेक्चर के बाद में। बिल्कुल।